Okay, I'll start now. Previous class we have seen Young's double slit experiment. In that, we have seen alternate bright and dark lines called fringes are obtained. Do you remember what is the fringe width? Formula for fringe width is? Formula for fringe width is what? Beta is equal to lambda d by d. It depends upon three factors. So based on that, we were solving the numericals. D क्या है? Distance of the screen from the slit. Small d क्या है? Distance between two slits, which are also called coherent sources. Okay, and lambda is the wavelength of light. तो ये fourth part हम लोग discuss कर रहे थे. Last part in fact. The monochromatic source is replaced by the source of white light. तो white light जब हम use करते हैं तो center of the screen पर तो सभी का constructive interference होता है. All are bright. All colors are having the constructive interference at center. Center is white, followed by colored fringes. Colored fringes जो हैं उसमें कौन सा कलर नियर बाई होगा? Which color will be close to the center of the screen? Which color will be close to the center of the screen? That is, we have to write, we have to find out. देखो यहाँ पर देखो सेंटर, ये आंसर पहले देख लेते हैं. सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज वाइट बिकॉज सेंटर में सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, followed by colored fringes with red color close to the center. Why the red color close to the center? Red का तो wavelength more है, it should be away from the center, है ना? लेकिन red color is close to the center because path difference lambda by 2 destructive interference will be happening first for the least wavelength lambda जो 400 है, which is for violet. तो violet and उसकी close color will undergo destructive interference. They will undergo destructive interference. Violet colors, violet and lesser wavelength colors nearby colors will undergo destructive interference. तो violet cancel हो जाएगा सबसे पहले, violet and blue and green, तो reddish दिखेगा, it will appear reddish. रेड का पार्ट, रेड का लैम्डा मोर होता है, उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लास्ट में होता है. तो शुरू में वायलेट का हो जाएगा और थोड़ा दूर जाएंगे तो रेड का होगा. तो कलर विच इज क्लोज टू द सेंटर विल बी रेड फर्स्ट एंड वायलेट विल बी लास्ट. देयरफॉर वायलेट will be last fringe in the colored pattern, in colored fringe pattern, in colored fringe pattern. तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आंसर आता है. जनरली इसमें क्या लिखते हैं? सेंटर तो ब्राइट है, सब कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर, बाकी उसके बाद ब्लू दिखेगा फिर रेड दिखेगा, ऐसा एजम्पशन होता है. क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम है इसलिए ब्लू विल बी फर्स्ट, बट ये रिवर्स आंसर है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ब्लू कलर विल बी डिसअपीयरिंग फर्स्ट, तो रेडिश होगा फर्स्ट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. इट वाज आस्क्ड इन जेईई. All right. Next question we'll see now. 26. In double slit experiment, instead of taking the slits equal width,
one of the slit is made half as wide as other, then interference will be, which of the following will be the right answer for correct interference? क्या आंसर होगा बोलो? तो एक सपोज स्लिट विड्थ आधी हो गई तो फ्रिंज विड्थ भी हाफ हो जाए, आई मीन इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगी. पहले आई नॉट है, तो वन विल हैव आई नॉट, अदर विल हैव आई नॉट बाई 2. तो इनका जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल के देखिए. मैक्सिमम के लिए cos phi 1 ले लीजिए, तो आई आर कितना आ रहा है? नॉर्मली कितना आता है जब दोनों, व्हेन बोथ आर आई नॉट, तब बोथ आर आई नॉट, तब आई मैक्स कितना आता है? 4 आई नॉट. और आई मिनिमम इज 0. ये इनिशियली रहेगा. फाइनली कैलकुलेट कर लो. देन यू कैन से कि व्हाट इज हैपनिंग. इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम इज गोइंग डाउन, और वन की अप जा रही है, दूसरे की डाउन जा रही है. तो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट. By calculating, you can confidently say. Can anybody predict the answer? क्या आंसर होगा? Intensity of both increases, or intensity of maximum increases, minimum decreases, minimum has 0. Intensity of maximum decreases, minimum increases, and intensity of maximum decreases, and minima has 0. So like this option, or both decreases. So this you have to find out and tell me answer in next class. All right. So this is important question. This is other question. In YDSC, 12 fringes are obtained to be formed, observed to be formed on certain segment of the screen. Suppose ये segment है इतना, this much segment है, यहाँ तक 12 fringes बननी है, 12 fringes. When the light of wavelength is 600, जब 600 है, तब 12 fringes बननी है. If the wavelength of light is 400 nanometer, how many fringes? So number of fringes are directly proportional to the wavelength. Other factors remaining same. Number of fringes directly proportional to lambda. So n1 upon n2 is equal to wavelength lambda 1 by lambda 2. इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस 1 में चाहिए ना. ओके, इनको 1 ले लो, जस्ट मिनट. ये साइड को 1 ले रहे हैं हम लोग. 2 वाली फ्रिंजेस हमें निकालनी है. वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर. सिंपल. n1 is 12, n2 we have to find out. वेवलेंथ कितनी है? 600, इसकी 400. तो n2 how much it is coming? n2 will be 12 into 4 by 6. Something has gone wrong or what?
400 में पहले 12 बनी है ना, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं, फ्रिंज विड्थ, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं। यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, ऐसा देखो इसको, सपोज ये सेगमेंट ले ली, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 और इधर से y2। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है ना, तो y1 इज इक्वल टू y2, सेगमेंट दोनों इक्वल रह रहे हैं, तो y1 क्या होगा, n1 लैम्डा 1 d बाई डी, n2 लैम्डा 2 d बाई डी, ये कैंसिल हो गया। n1 नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है, 12, और कितना है इसमें फ्रिंजेस, 600 फ्रिंज वेवलेंथ, इसकी निकालनी है हमें n2, और इसका 400 है। इफ यू सॉल्व इट, ये आएगा 18 फ्रिंजेस, ठीक है। n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ये कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। तो इन सेम डिस्टेंस इफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस, जब वेवलेंथ कम हो जाती है तो ऐसे फ्रिंजेस बन रही है लाइक दिस, तो वेवलेंथ अगर कम हो गई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाती है, उनका जो n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 ये कांस्टेंट रहता है, बिकॉज डी बाई डी तो कैंसिल हो जाएगा, 18 बी ऑप्शन है, क्लियर। यू मे हैव द डाउट कि सर इसमें हमने ब्राइट फ्रिंजेस ली हैं, डार्क क्यों नहीं ली, है ना। तो डार्क के लिए भी देखो, इसमें जो है दोनों फ्रिंजेस कवर हो जाएंगे ना, टोटल फ्रिंजेस कवर हो जाएंगी। सपोज हम एज्यूम कर ले कि चलो ये इतने में ब्राइट अपनी इतनी इतनी फ्रिंजेस बन रही है, फुल नंबर ऑफ फ्रिंजेस है ना, दोनों कवर हो जाएंगे इसमें, ऐसे ऐसे एज्यूम करने से, बिकॉज बीच में ब्राइट हमने ले ली, बीच में डार्क तो बीच में ही बनती है, क्लियर। तो डार्क उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो रहे हैं। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन 20, ये क्वेश्चन जो है नंबर, इसमें ये नंबर जो है, डोंट गो ऑन द नंबर। Two beams of light having intensity I and 4I interfere to produce the fringe pattern on the screen. The phase difference between the beams is pi by 2 at A and pi at B. Then difference between the resultant intensity at A and B is. How to do this question, bolo? Do you remember resultant intensity का formula क्या है? बोलो. Many times we have come across this formula. क्या relation है? Yes, Bhupesh. Yes, sir. What is the relation for resultant intensity? फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर रहे ना तुम लोग, इसलिए मुश्किल जाती है। दिशा, मेनी टाइम्स यू यूज द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, बोलो। सर दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट। नहीं, मेन फार्मूला बताओ ना, मेन फार्मूला। रूट वाले से वो मैक्सिमम के लिए है ना, स्क्वायर करके जो अंडर रूट हाँ में सर, प्लस करके, बट हमें हाँ मेन हाँ वो कहाँ से आता है, जो मेन फार्मूला है वो बताओ। हाँ सर, आया वो रे, याद नहीं। बोलो दिशा। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो फिर आगे का भी समझ में, नहीं तो क्या होता है फिर समझ में नहीं आता क्या चल रहा है ना। क्या फार्मूला I1
plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Phi is the phase difference है ना. फेज डिफरेंस कितना दिया है बोलो. फर्स्ट ए के लिए फेज डिफरेंस कितना दिया है. डायरेक्ट दिया है ये. यहाँ पे पाई बाय 2 पुट कर देंगे, ये टर्म पूरा 0 ही हो जाएगा. I1 दिया I2 4i दिया है. फेज डिफरेंस यहाँ पे सेकंड के लिए फेज डिफरेंस पाई दिया है. cos पाई -1 होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है. तो दोनों की इंटेंसिटी निकाल के डिफरेंस निकालना, डिफरेंस भी निकालना है ना. तो इसमें से आंसर मैच हो जाएगा. क्लियर. ये सब फार्मूले याद रखो. और सपोज इसको और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो फेज डिफरेंस ना देके पाथ डिफरेंस दे देंगे इसको λ/4. तो λ/4 से फाई निकालना पड़ेगा. फिर याद है फार्मूला, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का फार्मूला फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x. उससे फाई निकालना पड़ता है. फिर अगर फाई डायरेक्ट नहीं दिया है, फेज डिफरेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट का फेज डिफरेंस नहीं दिया है, तो फिर वो भी निकालना पड़ता है. क्लियर. तो ये सब फार्मूले पीछे से रिवाइज करते रहो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें क्वेश्चन हो जाते हैं सारे, हर लेवल के क्वेश्चन कर ले जाओगे, चाहे वो बोर्ड हो चाहे नीट चाहे जेई. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते ये. ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना. तो देखो ये क्वेश्चन क्या है. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज पैटर्न इफ YDSE यंग्स डबल स्लिट सेटअप इज इमर्स्ड इन द वाटर. कंप्लीटली पानी के अंदर डाल दिया, तो फ्रिंज पैटर्न में क्या इफेक्ट होता है, मतलब फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. बोलो. फ्रिंज विड्थ जो है, व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज विड्थ. क्या चेंज हो सकता है फ्रिंज विड्थ में. बोलो क्या चेंज हो सकता है वाटर के अंदर. फ्रिंज विड्थ में 3 फैक्टर में से क्या चेंज हो सकता है. वेवलेंथ चेंज हो जाती है ना. वेवलेंथ किस फैक्टर से चेंज हो जाती है. डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बाकी ये तो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस है, वो तो चेंज होती नहीं. तो वेवलेंथ 1/n टाइम्स हो जाएगी ना. तो वेवलेंथ जो है, एक मिनट इसको हटा दो पहले. वेवलेंथ बिकम्स 1/n टाइम्स. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो फ्रिंज विड्थ 4/3 टाइम्स हो जाएगी ना. देखो पहले ये वैक्यूम में, आई मीन 4/3 नीचे, 3 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा बाद में. तो पहले वैक्यूम में या एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, और B2 मतलब वाटर के अंदर, और वेवलेंथ λ2 लेंगे उसमें. तो λ2 विल बी λ1 वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. तो 3 ऊपर आ गया 4/3 का. जब हम ओके ये वैल्यू पुट कर दी λ2 की इसमें, तो ये टर्म क्या है λ1 d/d. तो ये B1 है, ये वाटर में आ गया. तो B1 वैक्यूम में, तो 3/4 टाइम्स रह जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, डिक्रीज. आंसर क्या होगा. डिक्रीजेस. डिक्रीज हो जाएगा. पानी में जो होते हैं ना, फ्रिंज नैरो हो जाती है, श्रिंक हो जाती है. वाटर में दे कम क्लोजर. कितना कितना श्रिंक. 3/4 कितना होता है, 75% रह जाती है, मतलब 25% डिक्रीज हो जाती है वो. दे डिक्रीजेस बाय 25%, दे रिमेन 3/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू. ठीक है. तो अगर तुमने YDSE को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट वाटर में किया, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेवलेंथ भी चेंज नहीं की, और उसका जो है डी एंड डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, वो तो चेंज करते ही नहीं, वो जनरली सेम रहते है ना. तो इट विल डिक्रीज. और अगर वाटर में, अगर एयर में हमें पता है कितना है, तो 3/4 कर दो उसको, तो वाटर में हो जाएगा. नाउ समटाइम्स दे आस्क द एंगुलर फ्रिंज विड्थ. ये कौन सी फ्रिंज विड्थ है, ये लीनियर. इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर फ्रिंज विड्थ. एंगल कितना बनाएगी फ्रिंज विड्थ, कितना एंगल बनाएगी सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे. सपोज
ये सेंटर ब्राइट फ्रिंज है, इतनी ऐसे फ्रिंजेस ऐसे बनती है। तो बीच वाली हमने सेंटर ब्राइट फ्रिंज ले ली, उसके दोनों एंड सेंटर ऑफ द स्लिट प्लेन पर कितना एंगल बनाएंगी, दैट्स व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज, अब सपोज ये एंगल बहुत छोटे रहते हैं ना थीटा, आर्क अपॉन रेडियस, बीटा जो आर्क का काम करेगा और ये डिस्टेंस डी होता है, तो बीटा अपॉन डी, बीटा इज फ्रिंज विड्थ दैट इज लैम्डा डी बाई डी, और ये डिस्टेंस है ना डी, तो डी कैंसिल हो जाएगा। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है एंगल के टर्म्स में, उसमें लैम्डा बाई डी, कैपिटल डी विल गो, एंड इसका एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, तो आंसर विल बी इन रेडियन। All right, answer will be in radian. Okay, तो इसका क्वेश्चन करके देखें, नोट कर लो ये। ये बीच में मैंने थीटा बीटा लिखा था यहाँ पर, दिस इज द एंगल, थीटा स्टैंड फॉर एंगुलर, बीटा स्टैंड फॉर विड्थ, फ्रिंज विड्थ। ये क्वेश्चन है, देखो अभी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन इज डबल्ड। इसको पीछे शिफ्ट कर दिया ना, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट होगा एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट होगा। कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है इसमें से, क्या चेंज हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है कि डी चेंज हो रहा है कि स्मॉल डी चेंज हो रहा है, कैपिटल डी, ये देखो ये डी है, इसको डबल कर दिया, क्या आंसर होंगे बोलो, फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा, फ्रिंज विड्थ विल बी डबल, ये डबल हो रहा है तो फ्रिंज विड्थ बीटा भी डबल हो जाएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ में डी आता ही नहीं है, तो नो चेंज, तो फ्रिंज विड्थ विल बी डबल, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल नॉट चेंज। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल नॉट चेंज। देखो स्क्रीन को अगर तुम पास में भी ले आओ, यहाँ पर एंगल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ले आओ, ये एंगल जितना बनना उतना, अभी फ्रिंजेस ऐसे बनेंगी, और पीछे ले जाओ, ये फ्रिंज सेंटर ब्राइट और वाइड हो जाएगी, बट एंगल उतना ही रहेगा, ये एंगल नहीं चेंज होगा, बिकॉज उसमें डी आता ही नहीं है। कैपिटल डी आई नहीं रहा उसमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो इसमें यू हैव टू बी केयरफुल, कौन सी फ्रिंज विड्थ पूछी है, एंगुलर तो नहीं पूछी है, एंगुलर पूछी है तो नो चेंज लिखना, नॉर्मल फ्रिंज विड्थ पूछी है तो चेंज हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नाउ ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, बोलो, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट using light of wavelength 600 nanometer, the angular width of the fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. What is the spacing between the two slits? क्या पूछा है बोलो, spacing between the two slits से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, what is this, small d, small d, तो कैसे निकालेंगे बोलो, which formula we are going to use,
ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ दी है ना, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला सबको ऐसा यूनिट में पुट करना पड़ेगा, है ना। बोलो थीटा, थीटा थीटा की वैल्यू क्या पुट करें? थीटा की वैल्यू क्या पुट की जाए बोलो? लैम्डा, यहाँ पे स्मॉल डी आएगा नीचे, है ना। बोलो थीटा क्या पुट करें? 0.1 डिग्री चलेगा क्या? कि कुछ और डालना पड़ेगा? सर रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? यस, पाई बाय 180 डिग्री है ना, तो डिग्री डिग्री हट जाएगा, फिर रेडियन में होना चाहिए और वेवलेंथ मीटर में होना चाहिए ना, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। नैनो को 600 नैनोमीटर कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁻7 मीटर। तभी ये वैल्यू पुट कर दो, डी आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180, क्योंकि रेडियन में होना चाहिए, डिग्री इज नॉट अ यूनिट, सब ऐसा यूनिट में पुट कर दो तो डी मीटर में आ जाएगा अभी तुम्हारा। बाद में उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये दो टॉपिक मेन है। मेन इज द फ्रिंज विड्थ। देखो ये क्वेश्चन बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर यहीं पे देंगे और फास्ट आंसर देंगे। गो थ्रू द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट एंड देन यू कैन रिप्लाई। बोलो, एनीबॉडी इज गेटिंग क्लू? क्या आंसर आएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था फ्रिंज विड्थ इन वाटर इज 3/4 ऑफ फ्रिंज विड्थ इन वैक्यूम, तो उससे कर सकते हैं, या फिर वो पूरा फॉर्मूला θ1 = λ/d1 अभी किया था ना उसका वैसा। डी तो सेम रहने वाला है। λ2 कितना होता है? λ1/n वाटर, तो θ2/θ1 will be λ2/λ1। यहाँ से θ2 will be θ1 into λ2/λ1। 0.2 दिया है, λ2 is λ1। ओके, यहाँ से देखो θ1 λ1/nw, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये फिर से वही फ्रिंज विड्थ पानी के अंदर निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। तो 0.2 है, ये 4/3 है डिग्री में, तो डिग्री में आंसर आ जाएगा 0.15 डिग्री। तो सिंपली वाटर में अगर हमने फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो जो वैक्यूम में है, और नॉर्मल फ्रिंज विड्थ निकालनी है तभी भी
ऊपर बीटा निकाली थी ना हमने, बाद में तो वही आया था ना, एन डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4, ये भी 3/4 हो रही है ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी 3/4 हो रही। इट इज आल्सो ओपनिंग 3/4, लीनियर फ्रिंज विड्थ भी 3/4 हो जाती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी इसका यूज नहीं है, ये 1 मीटर वगैरह ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इनका कोई यूज ही नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? Nobody is responding. सबको Yes, समझ में sir. नहीं आ रहा है? ठीक है, नोट कर लो इसको फिर। So this is question number 7, important. एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला लिखा है और डिवाइड कर दिया ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर विल बी, वैक्यूम में जो है उसका 1/n times n is the refractive index of water. जब साउंड वेव या लाइट वेव, पर्टिकुलर यहाँ पे लाइट वेव की बात करें, लाइट वेव जब पानी में जाती है तो उसकी वेवलेंथ भी जो फैक्टर एन से डिक्रीज हो जाती है, और स्पीड भी फैक्टर एन से, स्पीड भी निकालनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, वेवलेंथ भी निकालनी है पानी के अंदर, पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, ग्लास के अंदर निकालनी है तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। तो स्पीड चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना। तो इसलिए wavelength and speed will be reduced by the factor n, which is the refractive index of that medium. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक का है। दिस इज फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट, सेकंड पार्ट इज इनडायरेक्ट, और ये एनसीईआरटी बुक में ये इसकी वैल्यूज नहीं दी है, ये वाले लास्ट लाइन जो है प्रिंटिंग नहीं है, कई सालों से बुक ऐसे ही आ रही है विदाउट वैल्यूज। ये वैल्यूज पीछे जो उन्होंने सोल्यूशन दिया वहां से निकालनी पड़ती है हमें, इस वैल्यू के साथ सॉल्व किया। देखो तो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। Beam of light consisting of two wavelengths 650 and 520 is used to obtain the interference fringes in YDSC. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 650. तो third bright fringe की location, do you remember the formula? Third bright fringe का location क्या, formula क्या है? Y3 for bright क्या था? n lambda d by d था क्या? 3 lambda d by d। डायरेक्ट है, 650 के लिए निकालना, 650 का पुट करो, d देखो यहाँ पे दिया है 120 सेंटीमीटर, ये 1.2 मीटर हो जाएगा, ये मिलीमीटर दिया 10⁻³ भी आ जाएगा इसमें। तो ये ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन का फार्मूला हमने पीछे सीखा था, फॉर ब्राइट फ्रिंज। सेकेंड पार्ट देखो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो what is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelength coincide। तो देखो ये डायग्राम से मैं समझाता हूँ, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड होती है, फिर वो उनकी वेवलेंथ अलग अलग है तो फ्रिंज विड्थ भी अलग अलग है, तो वो थोड़ा सा फिर से वो उनका कोइंसिडेंस चला जाता है, फिर थोड़ी दूर के बाद जाके फिर से कोइंसाइड होती है, जब वो गैप टेकअप हो जाता है फिर से कोइंसाइड होती है। डायग्राम से देखो, देखो सेकेंड पार्ट के लिए सी, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे दो कोइंसाइड होंगी, इसकी बड़ी वेवलेंथ है उसकी विड्थ ज्यादा आएगी, छोटी वाले की कम आएगी, ऐसे यहाँ पे सेंटर में कोइंसाइड होंगे, फिर यहाँ से वो आगे पीछे हो जाएंगे ऐसे, फिर आगे जाके कहीं ना कहीं फिर से एक बार कोइंसाइड होती है फिर से,
आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस अगेन दे कोइंसाइड कंप्लीटली, तो वो डिस्टेंस सेंटर से सेम रहता है दोनों तरफ से, छोटी वाली फ्रिंज विड्थ के लिए और बड़ी वाली फ्रिंज के लिए दोनों सेम रहेंगे। y1 विल बी इक्वल टू y2, तो y ब्राइट के लिए y1 क्या होता है n1 लैम्डा 1 d by d, और दूसरी ब्राइट के लिए n2 लैम्डा d by d कैंसिल हो गया, तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, तो n1 by n2 लैम्डा 2 by लैम्डा 1, तो लैम्डा 2 520 है, n1 650 है, तो ये तुम्हारा रेशियो जो है 0 पहले कैंसिल हो गया, 13 से डिवाइड हो जाता है 4/5, तो n1 by n2 इज 4/5, तो जो n1 है पहली जो वेवलेंथ है 650 वाली उसकी 4 फ्रिंजेस बनेंगी, और जो छोटी वेवलेंथ है 520 वाली उसकी 5 फ्रिंजेस बनेंगी, तो ये मैंने नीचे लिखा है, दैट मीन्स 4 ब्राइट फ्रिंजेस फॉर वेवलेंथ 650, 4 ब्राइट फ्रिंजेस n1 650 के लिए था उसकी 4 बनेगी, है ना, जो वेवलेंथ बड़ी होती है तो फ्रिंज विड्थ भी वाइड होती है। 650 will coincide with fifth bright of wavelength 520, तो 650 लेंगे तो उसका 4 फ्रिंजेस लेंगे, 520 लेंगे तो उसकी 5 फ्रिंजेस लेंगे, तो किसका ले रहे हैं हम लोग 650 वाले का, तो 650 की जो लोकेशन है y4 उसकी 4 फ्रिंजेस बननी नहीं, यहाँ से हमें पता लग रहा है, देखो रेशियो से पता लग रहा है किसकी 4 और किसकी 5 बननी, तो बड़े वाले की 4 है तो y4 उसका लैम्डा 1 650, बाकी तो d by d तो सेम ही है, तो डिस्टेंस जब सॉल्व करेंगे ये, इफ यू सॉल्व इट डिस्टेंस आएगी तुम्हारी 1.56 मिलीमीटर, 1.56 मिलीमीटर। तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है 1.56 मिलीमीटर पर एक की 4th और दूसरे की 5th ब्राइट फ्रिंज फिर से कोइंसाइड होगी, सेंटर में तो कोइंसाइड होती हैं, आगे चल के फिर और आगे जाके फिर कहीं और फिर से कोइंसाइड होती हो, बट हमें यही निकालना था पहले कहाँ पे कोइंसाइड होंगे, सेंटर के अलावा, सेंटर में तो कोइंसाइड होंगे, तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज ऑफ हायर लेवल important for NEET and JEE also apart from the board। क्या किया हमने, दोनों y1 is equal to y2 से which is the location of bright fringes, दोनों की लोकेशन सेम होगी जब कोइंसाइड होंगी ना,